Good morning, students. So today in our English class, we are going to do the book work of lesson number 1, The Ballpoint Penguins, which we have read earlier. Okay. So Ballpoint Penguins is a poem about the penguins who write and they live in a cold areas and they are unique birds as they can't fly. Okay. So this is the summary of this poem. Now let's start doing the book work. Part A1. Okay. So let's read the question. Choose the correct answers to complete the given sentences. So we have to choose the correct answer to complete this sentence. The first one is, according to the speaker, ballpoint penguins come in dash colors. So according to the speaker in the poem, what we have read about ballpoint penguins are in which color? कौन से कलर के होते हैं ballpoint penguins? Red and white or black and white? Ballpoint penguins are black and white. Okay. So next one is, according to the speaker, what do the ballpoint penguins do? So according to the speaker or in the poem, what do the ballpoint penguins do? They just write and write or they think and recite? क्या करते रहते हैं वो ballpoint penguins? बार बार क्या करते रहते हैं? देखो हमने poem में पढ़ा था ना, they write and write and write. So they just write and write. Okay. Next one is, according to the speaker, how are these birds? According to the speaker or in the poem, how are these birds? Means to say, what is the nature of the birds? They are shy or silent. वो शांत और शर्माने वाले होते हैं और clever और talkative. हमने poem में पढ़ा था. Okay. कहाँ था? ये रहा देखो. These shy and silent birds. Okay. So shy and silent birds. Okay. Now turn the page. These are the question answers which we will do in notebook. Think and answer. Okay. Now come to this part. Now write down the rhyme scheme for every stanza of the poem. Then write a few rhyming words for the words given below. ओके. राइमिंग वर्ड्स होता है सेम साउंड वाले. फॉर एग्जाम्पल थिंक का सेम साउंड का कोई वर्ड बताओ. थिंक का सेम साउंड का वर्ड हो सकता है इंक हो सकता है, सिंक हो सकता है. ओके. लिंक हो सकता है, लिंक. जो सेम साउंड आपको दे. ओके. बर्ड्स का क्या बन सकता है? वर्ड्स. ओके. वाइट, राइट. स्नो, नो, लो. है ना? सो द राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच गिव्स यू द सेम साउंड ऑफ दैट वर्ड. ओके. जो सेम साउंड में निकलेंगे. Okay, let's come to page number 5. Okay. The poem Ballpoint Penguins is about the ballpoint pens and penguins. Both are nouns. Ballpoint penguins में हम दो वर्ड का यूज कर रहे हैं. एक कर रहे हैं ballpoint और एक हुआ है penguins. ओके. सो ballpoint के होते हैं, पेन्स भी होते हैं. बॉल पेन आपने सुना होगा ना कि बॉल पेन दे दो, जेल पेन दे दो. सो ballpoint पेन्स होते हैं. सो इट इज द नेम ऑफ अ पेन. ये पेन का नेम है. पेंगुइन्स बर्ड का नेम है ना? सो जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नेम वाले होते हैं, उनको नाउन बोलते हैं. सो दे बोथ आर नाउन. नाउन्स, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है बीच में. ओके. नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन आर द नेम ऑफ पर्सन्स. नाउन आर द नेम ऑफ पर्सन्स. पर्सन्स जैसे सीमा, रीटा, अमित. सो दीज आर द नेम ऑफ पर्सन्स. ओके. सो जो ये नेम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. जो नेम्स होते हैं, पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं.
ओके, ये पर्सन्स के नेम हो गए. नेम ऑफ प्लेसेस. अब प्लेसेस का नेम जैसे कि आगरा, दिल्ली, अमेरिका, है ना. तो ये प्लेसेस के नेम है. नारायणगढ़ जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नारायणगढ़ में रहते हैं. सो नारायणगढ़ इज अ नेम ऑफ प्लेस, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके. नेम ऑफ थिंग्स. चीज़ों का नाम आप लगा लो. चीज़ों का नाम क्या लगा सकते हो आप? जैसे आपके पास रेड बॉटल है, रेड बॉटल. ओके, सो ये चीज़ों का नाम हो गया. एंड एनिमल्स नेम. एनिमल्स नेम फॉर एग्जांपल टाइगर, एलिफेंट. So these are the name of animals. Okay. So these are the name, the nouns, the names of persons, places, things or animals are called nouns. And जो particular name के होते हैं that is called proper noun. Okay. They could be common like penguin or proper like ballpoint penguins. Common noun क्या होते हैं? अब common noun पे आ जाइए. प्रॉपर नाउन तो आपको पता चल गया. प्रॉपर नाउन जो नेम्स होते हैं जिस नेम का कोई और ना हो. कॉमन नाउन जब कॉमनली हम किसी को बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल. ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स होती है ना क्लास में, सब लड़कियों को गर्ल्स ही बोलते हैं, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन. लेकिन अगर गर्ल पर्टिकुलर होगी, सीमा, रीटा, समायरा, है ना, हमारे क्लासेस में पढ़ते हैं, तमन्ना, तो ये जब हम नाम लेके बोलेंगे व्हेन वी कॉल अ गर्ल विद अ नेम, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. जब तमन्ना बोलेंगे हम, क्योंकि तमन्ना नाम जब हम बुलाएंगे तो एक लड़की आएगी ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. लेकिन जब हम गर्ल्स बुलाएंगे तो सारी गर्ल्स आ जाएंगी, तो वो होगा कॉमन नाउन. इसी तरीके से बॉयज़ क्या है? कॉमन नाउन. लेकिन अगर हम किसी एक का नेम लेके बुलाते हैं, अमित, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके. अब हम बोले पेन, तो बहुत सारे पेन होते हैं. जेल पेन होता है, इंक पेन होता है. ठीक है, देयर आर मनी टाइप्स ऑफ पेन. जेल पेन, बॉल पेन, इंक पेन, पायलट पेन. बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बॉल पॉइंट पेन. बॉल पॉइंट pen. So ballpoint pen is a proper noun. Only pen is a common noun. Okay. Trees are common noun because there are many types of trees. But if I am saying there is a mango tree in my garden, तो यहाँ particular हो गया. I am talking about a mango tree. So mango tree is proper noun, but only trees common noun. Okay. School. There is a school near my house. There are many schools near my house. अब कौन से स्कूल की बात हो रही है नहीं पता ना, लेकिन सबको स्कूल ही बोलते हैं जहाँ हम पढ़ने जाते हैं. सो ओनली स्कूल इज कॉमन नाउन. बट अगर मैं स्कूल का नाम लूँ, ब्लू बेल्स स्कूल. So when I am calling with the name of a particular school, Bluebell School, that is called proper noun. Okay. So these are common and proper noun. For example, if we talk about animal, then cat, dog, elephant are common nouns. Because सारे elephants को, सारे dogs को, सारी cats को हम dog, cat, elephant ही बोलेंगे. But अगर हमारे पास हमने घर में कोई डॉग, हमारे पास कोई पेट डॉग है, उसका नाम है ब्रूनो या टॉमी, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल नेम, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके. जंबो एलिफेंट का नेम है. किसी सर्कस में एक एलिफेंट है, उसका नाम जंबो है. सो दैट जंबो इज अ पर्टिकुलर एलिफेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, सो मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, अंकल, आंट, ये सब कॉमन नाउन है. सारी वुमेन को वुमेन ही बोलते हैं, सब लड़कों को बॉय ही बोलते हैं. वी कॉल ऑल अंकल्स बाय अंकल, आंट, मैन, गर्ल. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन अंकल, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेटी गर्ल, ओके, मिसेस शर्मा, मिस्टर गुप्ता,
सो दीज आर द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ अ पर्सन, तो हम उसी पर्सन को बुला रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल नेम इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्लेस. If I'm talking about hill station, any school, any temple, so I'm talking about common names. It's a common name. Any school, कोई भी टेम्पल हो सकता है. अब नारायणगढ़ में कितने सारे टेम्पल है ना, कोई शिव टेम्पल, कोई शिव मंदिर है, ठीक है, कोई खेड़े वाला मंदिर है. तो जब हम नाम लेके बोलेंगे तो वो स्पेशल नेम में हो जाएगा. बट अगर हम कहेंगे नारायणगढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन नाउन. ओके, दार्जिलिंग इज अ प्लेस ऑफ हिल स्टेशन. खाली हिल स्टेशन कॉमन नाउन होगा, बट अगर मैं बताऊं दार्जिलिंग तो मैंने नाम ले लिया ना, सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल नाउन, स्पेशल नेम, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ थिंक, पेन, बुक, फोन सब चीज़ें हैं. लेकिन अगर मैं बताऊं लार्गर पेन, ठीक है, या बॉल पॉइंट पेन, या फिर पेरी गार्डन का पेन है मेरे पास, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, नेम बोल रही हूँ मैं. ओके, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है मेरे पास वीवो का फ़ोन है, तो मैं नेम लेके बोल रही हूँ. सो दैट नेम इज कॉल्ड स्पेशल नेम एंड कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, एक और बात, कॉमन नाउन बिगिन विद द स्मॉल लेटर्स. कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से शुरू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल. लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा. जैसे कि मैंने ट्री लिखा, स्मॉल लेटर से लिखा, बट जब मैं मैंगो ट्री लिख रही हूँ तो एम कैपिटल ऑटोमेटिकली हो गया. जब मैं किसी का नेम लिख रही हूँ, व्हेन आई एम राइटिंग अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग, देन आई एम राइटिंग कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर ऑलवेज, बट नॉट इन कॉमन नाउन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये एक काम करते हैं हम आज इतना ही करते हैं. लेट्स डू दिस, revise all these things, common noun and proper noun, okay, and rhyming words and this exercise. Thank you.